Good afternoon, children. Now, to understand chemistry, this particular class is going to be very, very important, and therefore, you have to submit yourself to the class. All right. That means you have to be very, very focused to listen. Before having any doubt, first try to very deeply look at what I am teaching. Right. See, we have got inert gases. Inert gases do not react with any other element. Normal condition, never they react, never. Under extreme conditions also, rarely they react, very extreme conditions they react. That means they are very stable. So, the reason for their stability is their electronic configuration. So, electronic configuration, what is that? Let us try to see about noble gases. We have already studied electronic configuration. Helium has got 2 electrons. Its atomic number is 2. So, helium has got 2 electrons. All right. So, the first orbit should have how many electrons maximum? 2. So, helium's first orbit is complete. So, it has got a stable configuration. Next is neon. Neon has got 10 electrons. Its atomic number is 10. So, it has got 10 electrons. So, 2, 8. So, its electronic configuration is complete. Next, argon. Argon has atomic number 18. So, it has got 18 electrons. So, it has got the configuration 288 and so on. Krypton will be 2, 8, 18, 8. In my previous videos about bonding where I have taught, you can also visit that and you will know about all this electronic configuration further. So, I have given one small glimpse of electronic configuration of noble gas. Except helium, what do you see in all the noble gases configuration? Anybody can say? The outermost orbit contains 8. So, valence electron is 8. What is your name? Tejas. So, 8. Valence electron is 8. That means now we know that these are inert gases. So, scientists have found that the reason for their inertness is complete configuration, stable electronic configuration. So, what happens? I will try to go with sodium and chlorine. Sodium and chlorine. Sodium has got atomic number 11. So, its electronic configuration is 2, 8, 1, and chlorine has got electronic configuration atomic number 17. So, its electronic configuration is 2, 8, 7. So, atoms of all the other elements will try to acquire electronic configuration as nearmost inert gas atom. So, which is nearer to sodium? Neon. So, its electronic configuration is what? Swastik. What is electronic configuration of neon? 10. So, how much electron? So, sodium has got, so its electronic configuration is 2, 8 and sodium has got 2, 8, 1. What should sodium atom do to get near to neon? So, sodium should give 1 electron to chlorine. That means sodium is electropositive also. Positive people give their things. Can I have your pen today? Oh, he is giving. So, he is electropositive. All right. And I will be borrowing. So, I will be what? Electronegative. And also here, if you have a correct knowledge about atoms and previous videos if you have seen, sodium's atomic number, if it is 11, that means it has got 11 protons and 11 electrons. Now, 1 electron has got, now what will happen to sodium? It will acquire what? What charge it will acquire? It had a positive charge. Whenever any atom loses electron, it acquires positive charge. Because remember this, any atom when it is neutral, this signifies number of protons and electrons both. So, it had 11 proton and 11 electrons. Now, once 1 electron has gone, that means it is containing how much? 11 protons and 10 electrons. So, proton becomes more when electron goes. So, it is positive charge.
And chlorine, what will happen? Here, how many electrons or protons are there? 17. 17 protons and 17 electrons. Now what has happened? One electron has come to it. So its proton number is 17, but electron is what? 18. So now there is a bonding taking place and a compound has been formed, NaCl, नमक. मैंने आपका नमक खाया है, नमक का फॉर्मूला यही है, NaCl, sodium chloride. So 2-3 things you have to also understand that these compounds are called ionic compounds, because whenever an atom loses electron, it becomes an ion. What is an ion? If somebody tells, ions are those atoms which contain unequal number of protons and electrons. Why sodium is an ion? Because it contains unequal number of protons and electrons. And also remember, if there is one plus sign, straight away remember the atomic number 11, and if there is plus sign, 11 proton, but plus sign means one electron has gone. How many electrons? 10. Are you following? And chlorine has got minus sign. So you remember its atomic number, you know. So initially what do you know? It had 17 protons and 17 electrons. Now one electron has come. That means when there is minus, for number of electrons actually you have to add. So you will add one electron. So how many electrons does Cl minus contain? 18. Did you understand? So now NaCl has made ionic bond. Alright. And it is an ionic compound. Actually, all ionic compound in solutions, they break again into positive and negative ion. So you should also understand the property of ionic compounds. They conduct electricity. Therefore, you don't have to take a risk with dealing with salt water and electricity. If you by mistake try to think that a salt water will not conduct electricity, it will conduct electricity. All acids are ionic compound. But we are into one more thing, that the formula for sodium chloride, we call it sodium chloride, is NaCl. Then what is the formula for magnesium chloride? So magnesium chloride will be MgCl2. You cannot say NaCl sodium chloride, magnesium chloride MgCl, aluminum chloride AlCl3. So aluminum chloride is AlCl3. We cannot say AlCl. मैं पूछूंगा तो आप गाना गाने लगे, मेरी मर्जी, मैं चाहूँ वो करूँ, मैं चाहूँ वो करूँ, तो वो नहीं होगा. मर्जी आपकी नहीं चलती, इसलिए डिसिप्लिन होना भी ज़रूरी है. डिसिप्लिन कोई ख़राब चीज़ नहीं है. मैं कुछ न कुछ लोग या दुनिया या आपके से बड़े लोग कुछ न कुछ कारण से आपको डिसिप्लिन करते हैं. भगवान ने भी डिसिप्लिन किया. यहाँ कोई मर्जी नहीं चलती एल्युमिनियम क्लोराइड का एटम बनने में. हाँ, एल्युमिनियम क्लोराइड को सर चूंकि सोडियम क्लोराइड वैसा कर रहा है, कभी कभी कोई बच्चा बोलता है उसके पास आईफोन है तो मेरे को भी दिला दीजिए आईफोन, पैर पटक पटक के रोता है. तो उसके पास आईफोन है क्योंकि उसके मम्मी पापा का सेविंग्स 10 लाख रुपया पर मंथ होगा. आपके पास आईफोन इसलिए नहीं है क्योंकि मम्मी पापा का सेविंग हो सकता है 10,000 होगा. तो हर नियम को समझने से लाइफ बहुत अच्छा चलेगा. ये एक इस बॉन्डिंग चैप्टर में भी हम लोग समझेंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट अस ट्राई टू थिंक अल्युमिनियम क्लोराइड का कैसे फॉर्मेशन हो गया. पहले Mg मैग्नीशियम क्लोराइड का. तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है. पूरा क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए. 282. वेरी गुड. 2,8,2 मैग्नीशियम का. क्लोरीन का 17 है. 2,8,7. ऑलराइट, डिड यू अंडरस्टैंड? अब क्या होगा? विल यू बी एबल टू एक्सप्लेन निहिता व्हाट विल हैपन? यू कैन कम हियर. हाँ, कम. व्हाट विल हैपन? Yes, sir. Sir, 2 chlorine atoms will be required so the 2 electrons of the magnesium got removed and magnesium becomes stable. Very good. God bless you. Very nice, Nihita. Let us give a good hand to her. Good. Let us give a good hand. Good, good. Sit down, beta. So, two electrons are to be given. So, one magnesium atom will give one electron here and other of its electron to this chlorine. And that is why the formula for Mg is Mg, and this ion is formed. It has got 2 charges. Because it has lost how many electrons? It is visible. 2 electrons it has lost. Then its octet is complete. Now its configuration of, somebody asked what is the configuration of Mg++.
देन रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसका 12 होता है लेकिन इस पर 2 प्लस चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन्स चला गया, कितना इलेक्ट्रॉन चला गया है 2, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले 282 था, अब क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। Mg प्लस प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखने पूछेगा तो 12 याद रखेंगे, क्योंकि प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 282 नहीं हो क्या, अब क्या होगा 28, क्योंकि अब इसको कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसा हो गया है। डिड यू अंडरस्टैंड? और क्लोरीन, यानी यहाँ पर Mg है लेकिन यहाँ पर क्या है, एक क्लोरीन पर एक ही चार्ज आएगा, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम है, तो आगे जब भी 2 से गुना करते हैं इसका मतलब है 2 क्लोरीन आयंस आर देयर, आगे जब भी। लेकिन जब फॉर्मूला लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। डिड यू अंडरस्टैंड? यानी हमारी मर्जी नहीं चलेगी, ये है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार मैग्नीशियम क्लोराइड। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जानना। और मैग्नीशियम इज अ बाईवैलेंट एलिमेंट, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक सिंगल एटम उसी को उसकी वैलेंसी कहते हैं। तो अल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई 2, सॉरी मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी 2, सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई, वो एक ही इलेक्ट्रॉन के तो 1। तो इन लोगों को कहते हैं, क्लोरीन को कहते हैं मोनोवैलेंट, मैग्नीशियम को कहते हैं बाईवैलेंट। आर यू फॉलोइंग? 2। अब आ रहे हैं आप, अभी हम जिस पर आना चाह रहे थे उस पर, लेकिन यहाँ देखिए कि मान लीजिए कि आपको फॉर्मूला आप कितना बार इतना एलाबोरेटली लिखेगा, जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ते जाइएगा, 10th क्लास में चले जाइएगा तो लिखेगा मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ कैल्शियम ऑक्साइड, तो आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 लिखने समय सिंपली आपको वैलेंसी याद करना है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और क्लोराइड की वैलेंसी 1 है। तो ये समझाना चाह रहा था मैं शौर्य कि Mg ऐसे लिखेंगे और उसकी वैलेंसी आपको याद रहनी चाहिए 2 है, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है Mg1, तो 1 नहीं लिखा जाता है, Cl2 1 रहेगा तो नहीं लिखा जाता, MgCl2 इसका फॉर्मूला हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? MgCl2 इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये अब पूरा अब एक एक चीज जैसे कहा जाता है ना, इफ यू आर नोइंग नाउ, देन सपोज द बैंक गिव्स यू एन ATM, so आपको when you have to, you know that to get the money you have to use ATM, तो मामा brought an ATM and told बेटा इससे पैसा निकलता है, ये बैंक से जाके लाए, तो आपको 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, तो आप जाके ATM से पैसा निकालनी, फिर आपको 5,000 और की ज़रूरत पड़ी, तो फिर आप बैंक जाइए कि ATM को यूज़ कर लीजिएगा, ATM यूज़ कर लेंगे। तो अब ये फार्मूला जब समझ गए या लॉ समझ गए क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो अल्युमिनियम क्लोराइड का कोई भी बच्चा जो तेज है बता सकता है कि क्या होगा फार्मूला, कैसे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्लोराइड मतलब Cl लिख देंगे, अल्युमिनियम मतलब Al, अल्युमिनियम के ऊपर वैलेंसी कितना लिखेंगे 3, देखिए यहाँ पर लिस्ट है, और क्लोरीन के ऊपर वैलेंसी कितना लिखेंगे 1, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा AlCl3। तो आज जाके आपको नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट द वैलेंसी कॉन्सेप्ट टेल्स यू, कोई बच्चा जो क्लास में तेज रहता है वो फट से बता देता है कि जिंक क्लोराइड ZnCl2, आपको ZnCl होगा अभी भी खोज रहे हैं, लेकिन उसको जिंक का वैलेंसी मालूम है 2 है और क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, तो कर लेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ तक क्लियर है? आप लोग जरूर ही, यू शुड गो एंड ट्राई टू सी द अदर वीडियो ऑफ माइन, दैट इज electrovalent bonding. So further some more compounds I have explained. This type of compounds where there is transfer of electron are called ionic compound or electrovalent compound. Al का फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, Al283, fast tell me how many electron it has to be lost? 3 है ना, 5 गेन करना तो इसको मुश्किल है। एंड क्लोरीन 287, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन एटम विल नीड टू बी स्टेबलाइज्ड 1, 288। सो नाउ व्हाट विल हैपन, एक को दिया फिर दूसरा को दिया, क्लोरीन विल गो टू इट्स महल्ला एंड ब्रिंग 3 मोर ब्रदर्स, ट्विंस और ट्रिपलेट्स, चलो भाई वहाँ इलेक्ट्रॉन बट रहा है, आहा, एंड AlCl3 और एक बॉन्ड बन जाएगा। अल्युमिनियम पर कितना चार्ज आएगा कौन बताएगा? What will be the charge on aluminum? It has lost 3 electrons.
plus 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 3, isn't it? Aluminum will have plus 3 charge. All of you have understood this? Okay, so this is what is about ionic bonding. So अब हम लोग थोड़ा देर तक चर्चा करेंगे कैसे फॉर्मूला लिखें किसी भी चीज का. तो आपके पास ये लिस्ट है, ये मिनिमम आपको याद रखना चाहिए. ये लिस्ट अगर आप +2 तक बहुत सुंदर से पढ़ाई करना चाहते हैं एंड यू वांट टू बिकम अ स्मार्टेस्ट किड, देन ये पूरा आपको याद रहना चाहिए कि वैलेंसी किसकी कितनी होती है. जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें लिखना है. इफ आई हैव टू राइट डाउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नाउ आई डोंट वांट टू गो टू डिटेल्स ऑफ बॉन्डिंग बिकॉज यू डोंट हैव टू ऑलवेज गो टू द डेप्थ ऑफ द बॉन्डिंग. If you want to know how it is formed, then you see the electrovalent bonding. There I have explained. But now here I have to write the formula. Who will try? Adya, you will try? Come. Come Adya and write down. I am writing Al and oxide O. So can you try it out, beta? So then we will cross multiply. Yes, beta. And then it will become Al2O3. All three. Let us give a good hand. Good, very good. So that means the class now understands the topic, isn't it? Class now understands the topic. Now there are some group of atoms which have charges. Some group of atoms like sulfate, you see, SO4. All right. So now what to do with the group ones? Group one में क्या करना है? Let us see. Sulfate के लिए I am writing aluminum sulfate because aluminum has got valency 3. So वहाँ पर exchange करने में बड़ा मजा आता है लिखने में. Aluminum sulfate. Aluminium sulfate. So aluminium's valency Al, so aluminium's valency is 3. Normally I do the opposite thing, I write the valency on the top, but it is okay wherever you write. SO4 valency is 2. Now what to do? शौर्य क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय केयरफुल रहेंगे. एल्यूमिनियम और ये ग्रुप ऑफ एटॉम है SO4, तो ये ब्रैकेट में रहेगा. अब इसका वैलेंसी 2 इसके पास और इसका वैलेंसी इसके पास. इसीलिए एल्युमिनियम सल्फेट, इफ समबडी टेल्स, जल्दी से AlSO4 नहीं कह सकते. Al2SO4 होल थ्राइस. स्वस्तिक इसको कैसे पढ़ेंगे? Al2SO4 होल थ्राइस. बोलिए क्या पढ़ेंगे? होल थ्राइस. ओके. मोस्ट ऑफ द केसेस जब वैलेंसी सेम रहे तब 2 नहीं लिखना या 1 नहीं लिखना है. जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा. यहाँ पर आप 2 स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन तेज हो जाएगा तो फिर सिंगल स्टेप में आप लिख सकते हैं. दोनों का वैलेंसी 2 है तो 2 कैंसिल कर देता है एक दूसरे को. तब क्या लिख देंगे? डायरेक्ट CaSO4. एनी प्रॉब्लम टिल हियर? हैव यू अंडरस्टूड? तो इस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन, बेटा ये हम लोग जो आवर सिलेबस इज अनऑर्गेनाइज्ड, वी आर नॉट नोइंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ साइंस. नो, द कॉन्सेप्ट शुड गेट इन योर हेड, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट. लेटर ऑन सब लोग नाट लगाते हैं, पढ़ती नहीं है, लिखती नहीं है, बट अरे ठीक से ऑर्गेनाइज पढ़ाई होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, आपको इंटरेस्ट लगेगा, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. सो लेट अस सी वन मोर थिंग नाउ. I will try to call now somebody. कैल्शियम फॉस्फेट, वहाँ लिस्ट में पहले सब लोग देख लीजिए. कैल्शियम की वैलेंसी देखिए कितना लिखा हुआ है. चेक कीजिए. इधर पॉजिटिव वैलेंसी है, जो इधर वाला को कहा जाता है पॉजिटिव वैलेंसी, और उधर जो लूज करता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और जो गेन करता है वो क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिव है. तो उस साइड वाले सारे नेगेटिव हैं. फॉस्फेट, अगर कोई एक्चुअली में आपको सल्फेट को बोलेगा रिप्रेजेंट कीजिए, लिखिए, तो सल्फेट अगर अलग से क्या, सल्फेट आयन कैसा दिखता है, तो आप बोलेगा SO4 और उसका जो वैलेंसी है ऐसे करना पड़ेगा. आर यू फॉलोइंग? तो ये तो बाद की बात, अभी तो फॉर्मूला लिख रहे हैं. कितना जन फॉस्फेट का वैलेंसी हमने यहाँ लिखा है, कितना जन कर लेगा? Will you try? So this time who will come? Swastik, why not you? Shaurya, why not you? Will you be able to try, or let me give one chance to Tejas? First, come. CA3PO4 होल ट्वाइस. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? हो जाएगा सबसे. ऑल राइट, गुड. सो एक दो चीज़ और जानिए कि हैंड राइटिंग क्यों ज़रूरी है अच्छा रखना.
हैंड राइटिंग क्यों ज़रूरी अच्छा रखना? वाई आवर हैंड राइटिंग शुड बी गुड? बिकॉज याद रखिए कि ये दोनों में क्या अंतर कोई बताएगा? ये कोबाल्ट है और ये कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड है। आर यू फॉलोइंग? तो पी के साथ ऑक्सीजन, ये पीओ कर देंगे तो हो सकता है पोलोनियम हो जाएगा। जब लिखिएगा तो बेटा कुछ भी आपने गलत नहीं किया, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको खूब सुंदर से लिख देना है, ठीक है? तो इसमें क्या, नो हार्ड फीलिंग्स एट ऑल, बिकॉज बुजुर्ग हैं, डांटना हो तो डांट दीजिएगा, एक्सपीरियंस है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग कहीं कुछ गलती कीजिए। तो PO4 ऐसे लिखना है क्योंकि फॉस्फोरस अलग है और ऑक्सीजन अलग। फॉस्फेट जो आयन होता है वो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से बना रहता है, और PO हो सकता है किसी के दूसरे का सिंबल हो। हमेशा याद रखिए, अगर किसी भी सिंबल में 2 अल्फ़ाबेट है तो, और एक ही का नाम है, लाइक सोडियम Na, तो आप जाके ऐसे नहीं लिख सकते, ये सब गलत हो जाएगा। पहला वाला स्मॉल छोटा, दूसरा वाला कैपिटल नहीं, ना ये जो है नाना नाना नारे, आई डोंट नो व्हाट इज इट, ये हो जाएगा, ये भी गलत है ना, नॉट अप्लीकेबल, ये फॉर्म में भर आता है। हमेशा सिंबल में, इन द सिंबल द फर्स्ट अल्फ़ाबेट शुड बी अ ब्लॉक लेटर कैपिटल एंड द नेक्स्ट वन शुड बी स्मॉल, अगर वो एक सिंगल एलिमेंट है तब। क्योंकि अगर ऐसे लिखिएगा ये क्या हो जाएगा मालूम है, NaR, दिस इज नाइट्रोजन एंड दिस इज आर्गन, बट ऐसा कंपाउंड होता नहीं, इनर्ट गैस है इसीलिए। सो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आर द पॉइंट्स, जो करेक्शन से, रेक्टिफिकेशन से कहाँ पर कैसा पॉइंट्स है? श्योर है, समझ में आ रही है? चलिए आज आपकी रैगिंग हुई, यू आर द न्यू बॉय, नो, सो कम प्लीज, श्योर है, कम। सो लेट अस सी, जस्ट टू, सॉरी, यू आर फ्रॉम विच स्कूल? सो यू आर अ बोल्ड गाय, रेडी हैं? All right, let me see what to do. I will give you aluminum oxide. Should I give you? I've already given barium, potassium dichromate, बड़ा वाला देता हूँ आपको। पोटाशियम का ऊपर में K है और डाइक्रोमेट Cr2O7 का गुच्छा है, ठीक है? Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट। If you do this, थोड़ा राइटिंग किया जाए ना, न्यू बॉय ना, so let us see. ओके, सो चलिए, गुड। गुड, वेरी गुड, दैट्स करेक्ट, क्योंकि इसका 2 इधर आया और चूंकि इसमें 1 था तो इसको ब्रैकेट में नहीं रखा। हाँ, आर यू फॉलोइंग? अब चल रहा है। पलक जी आइए, आपको नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूं, आप लिखिए, आइए देखिए, तो आप लिखिए कैल्शियम कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम का Ca है और उसका F है, वैलेंसी यहाँ पर, फ्लोराइड करो इसका। सही है, इट्स करेक्ट, गुड गुड गुड, सबसे हो रहा है। स्वस्तिक समझ में आ रही है आपको? बहुत चुपचाप से बैठे हुए, दबे पाँव बना लीजिएगा सारा। ओके, सो गुड। नाउ सपोज वी हैव टू डू अदर वेलकम। पलक आ चुकी है ना आप? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैन यू डू दिस? हाइड्रोक्साइड, OH है, हाइड्रोक्साइड कहीं पर है, यहाँ OH। एल्युमिनियम का बैलेंस भी ठीक है, OH है, ठीक है, उसका बैलेंस 1 और उसका 3। क्या मिस कर रही हैं, कोई बताएगा? क्या मिस कर रही हैं? यस, जब ग्रुप ऑफ एटम्स है तो ब्रैकेट देना है, और जब उससे किसी को मल्टीप्लाई करें। एनी प्रॉब्लम्स, एनीथिंग यू वांट टू सच, यू वांट टू, यू सी दैट नीड्स टू बी चेंज्ड?
Nothing? Done? Everything is going on correct? Right then. Now what will happen? Let us see. अब ये you don't have to go to deep. Some of the elements have got variable valency. Some of the elements have got variable valency. Like copper may have two valencies. In certain cases it loses because there are some exceptions of the octet rules. And there are some deviations from the octet rule which later on you will come, but formula, so you should know. Suppose somebody tells cuprous chloride, then you have to take valency 1. Suppose somebody tells cupric chloride, then you have to take the valency 2 for copper. Even remember, अगर same element है तो लोअर वैलेंसी को अस लिखा जाता है और हायर वैलेंसी को इक लिखा जाता है. बहुत गुस्सा से देख रहा है. आर यू ओके? ऑल राइट. ओके, ही इज डीपली कॉन्सेंट्रेटिंग. ही वाज लुकिंग एट मी लाइक दिस. ओके, सो क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड, तो दोनों का लिख रहे हैं आजकल. लेकिन सी, एजुकेशन सिस्टम मेक्स थिंग्स इजियर फॉर यू. एजुकेशन सिस्टम मेक्स थिंग्स इजियर फॉर यू. दैट मीन्स क्यूप्रस क्लोराइड. So it will be Cu1 and Cl1. So CuCl. But somebody tells cupric chloride, what will happen? What valency will take? Cu2 and Cl1. So it will be what? CuCl2, like that. Now it depends on condition whether cuprous chloride will be formed or not, or cupric chloride will be formed or not. But nowadays they write it like this: copper 1 chloride, they will give you this, then it is easy. Here they are already mentioned that take the valency of copper 1, तब तो easy है. Copper 2 chloride means what chloride? Cupric chloride. तो आजकल ऐसे भी देते हैं, तो ये तो आसान हो जाएगा, isn't it? You will study about stannous chloride, stannic chloride. Stannous is always valency 2, tin, and stannic is 4. Ferrous sulfate of ferric sulfate, who will do this? Ferric sulfate, who will take the risk? Ferric sulfate, who will do this? Valency of ferric is how much? And sulfate is SO4. Somebody try, be brave. गलती करेंगे तो करेंगे. Come Adya, come. Good, very good. Come. SO4. That is correct. All right. So that is good. Very nice. So